Many times we have this question that what is existence? What is consciousness? What is this soul? What is this mind and body? What is this concept of God? Right? All these come under the mother of subjects, which is philosophy, the root and the seed of all the subjects. Now, philosophy is love for wisdom. Okay. For our UPSC exams to crack, we are going to deal with two major branches of philosophy. One is metaphysics and second is epistemology. Ethics is a part of GS4. You can go to my YouTube channel and there is a compilation of a marathon video which can help you for your mains. Now let's begin over here. Now philosophy, it comes from the root word philosophia, which is love for wisdom. Two major branches which we are going to deal over here is metaphysics, also known as तत्व मीमांसा. दूसरा हिस्सा इसका है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज ज्ञान मीमांसा. ठीक है. तत्व मीमांसा. Why this is तत्व मीमांसा? Because it is dealing with beyond and after physics. The word meta over here means beyond or after. Right? What is physics? Whatever you are seeing over here, the material reality which is existing. But what is beyond that? हम चेतना की बात करते हैं, पर ये चेतना है क्या? ये कॉन्शियसनेस है क्या? अभी हम जितने भी philosophers पढ़ेंगे, they all are trying to catch this thing, right? तो what is this thing? What is this ultimate reality? सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है कि ये ultimate सत्ता है क्या? That is known as metaphysics, beyond and after physics, where it starts. The soul, the concept of God, the consciousness. Is this clear? Now, after discussing this, हमारा पूरा फिलॉसफी का सिलेबस इन दोनों पहलों में है. एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज ज्ञान मीमांसा, राइट, और थ्योरी ऑफ नॉलेज. दैट हाउ can you know this ultimate reality? The question over here is, what is this ultimate reality? The question is in epistemology is, how can we know this ultimate reality? हमें ये कैसे ज्ञात होगा? कैसे इस चीज का संज्ञान होगा कि आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है, या मैं जो सांस लेता हूं मेरे अंदर जो चेतना है वो क्या है? बाद में डिकार्ड्स बोलते हैं, I think therefore I am. This thinking thing, this consciousness, how do I get to know that? That is the theory of knowledge. वो क्या है और उसके बारे में कैसे ज्ञात होगा, ये दोनों में फर्क है. इज इट क्लियर? ये पहला डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था. दूसरी चीज, यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न फिलोसोफर्स एंड द इंडियन फिलोसोफर्स ओवर हियर. अब जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, they were running after the subject and the object duality. Some of them were running after the subject, some were running after the object. Hardly anyone apart from Kant and Husserl tried to reach as possible as to reconcile both of them. What was happening? The rationalist set of philosophers, they were running after the subject. If I say the cat is on the mat, the cat is the subject and mat is the object over here. ये यूनिटी को नहीं पकड़ पा रहे थे, ये चीजों को अलग अलग लेंसेस से देख रहे थे. And the empiricists over here, they were running after the object. Is it clear? Why? Because Western philosophy was based on intellectual apprehension, right?
They were trying to find this consciousness either in the subject, either in the object, but they were never able to unify this until it was Kant's asynthetic unity of a perception. Is it clear? Now, क्यों? क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड या सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड या इंटेलेक्चुअल एप्रीहेंशन बेस्ड जा रहे थे, लेकिन अपने जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, राइट, अपने जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, ये ऑलरेडी इस प्रमाइस पे थे दैट देयर इज नो सच डुअलिटी of subject and object. In fact, there is unity. This subject and object, they are together, जिसको शंकराचार्य ने साक्षी बोला था. तो अपने इंडियन फिलोसोफर्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहां मेटाफिजिक्स बहुत कम है. वो ये नहीं बोलेंगे कि ये अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो ये बोलेंगे कि ये एक तरीका है आप अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं, एंड दैट इज yogic intuition. Is it clear क्या चल रहा है? ये जानने की कोशिश कर रहे हैं यार अल्टीमेट रियलिटी है क्या, और ये जान चुके हैं, ये इस प्रीमाइस पे हैं, देयर इज एक सत्ता है जो एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ एग्जिस्टेंस, एंड ऑन दैट एग्जिस्टेंस नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट द नियर बाय एक्सपीरियंस ऑफ दैट एग्जिस्टेंस. They are more on the practical epistemological side. ठीक है, ये अभी तक इंटेलेक्चुअल वर्जन नहीं है. Is this concept clear? हमारी पूरी डिबेट, हमारी पूरी क्लासेस में ऐसे ही चलेगा. एक सब्जेक्ट को पकड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा है वेस्टर्न में, और कोई भी इसका बीच का रास्ता नहीं निकाल पाया है. लेकिन इधर हम पढ़ेंगे क्या तरीके हैं हम इस यूनिटी के पास पहुंच सके. यही है आपके पेपर 1 में. पेपर 2 में देयर इज सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, वी विल बी सीइंग दैट, एंड पेपर 2 के अगले सेक्शन में आपका रिलीजन फिलोसफी है. अब रिलीजन फिलोसफी में जो इनके तरीके हैं, जिस तरह से इन्होंने प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बताया है, वी आर गोइंग टू राइट दैट एज इट इज. अपनी बुद्धि इन पेपरों में दूर रखें. अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है. यू हैव टू स्कोर अबव 280, 300, then only you will make it into the list, right? You have to quote only the philosophers. You have to criticize one philosopher by the another philosopher. अपनी कोई थ्योरी इसमें ना डालें. Subject is pretty analytical. अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, you will never forget the subject. Okay, let's very quickly begin over here. Coming up to the Western philosophers over here. Paper 1, Western philosophy, contemporary Western philosophy, Indian philosophy. इसके लिए मैंने already आप लोगों को books बता दी है in my last video. Why must see, right? And you have to see this contemporary from IGNOU BA MA notes or Stanford side. Indian philosophy के लिए I have already told you C.D. Sharma, ठीक है? Socio-political philosophy के लिए I have told you it is O.P. Gauba, and philosophy of religion के लिए again it is Y. Massey and John Hick. Selectively 100 pages only you have to do of whole books, all the books. Is it clear? Let's quickly come to paper 1. Now this paper 1, it starts with the Greek philosophy. Okay. अब जब आप मसी पढ़ें तो प्लीज ग्रीक एटोमिज्म के डिटेल्स में नहीं जाएं. Just start it from Plato. Okay. प्लेटो बात करते हैं आइडियाज की. द फर्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज आइडियाज. प्लेटो कहते हैं कि इस दुनिया में जो आइडियाज है ना, ये कॉपी है. दिस इज नॉट द रियलिटी. इफ अ चेयर इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर, और इफ दिस पेन इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर, ओके, दिस सिलेंड्रिकल पेन, देन द पेननेस, its universalness is existing in the transcendental world. There is a transcendental world, and this is merely a copy of the transcendental world. Plato इसमें allegory of cave की बात करते हैं कि हम सब एक cave में बैठे हैं, ठीक है. He says that, and fire जल रही है, लेकिन हमें सिर्फ उसकी परछाई दिख रही है.
until and unless somebody comes us and tells us, we don't know what is the truth, we don't know what is the knowledge. Is it clear? So he describes various sets and forms of knowledge over here. And since he was a student of Socrates, he believed in the critical Socratic method. Now the ideas which he is talking of, this world and that world. Okay, this is in your syllabus. One thing, W.T. स्टेस यहाँ पे बोलते हैं कि प्लेटो के जितने भी शास्त्रार्थ हैं वो सारे के सारे पोएटिक हैं. ठीक है, देयर इज अ सेंस ऑफ मिस्टिसिज्म बिकॉज प्लेटो सेज दैट हम जब चलते हैं हमारे पीछे एक परछाई चलती है. टू अंडरस्टैंड प्लेटो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ आइडियाज. ये आइडियाज क्या है? ये आइडियाज अल्टीमेट सब्सटेंस है, राइट? द अल्टीमेट रियलिटी. टू बी गुड you rise up in the hierarchy. Plato has never mentioned that this idea is God. No, he has mentioned this idea is the ultimate good. Is it clear? Okay, now coming to Aristotle. Now Aristotle, being a student of Plato, ये जो duality है प्लेटो की, जो प्लेटो बनाते हैं वो दुनिया ट्रांसेंडेंटल एंड इंपेरिकल, दिस दुनिया, इसको खत्म करते हैं. That is why he is known as visionary metaphysics. His metaphysics is known as visionary metaphysics. Is it clear? He says that the form and matter are existing here itself. There is hylomorphism. ठीक है? There is not ultimate either one of this. He gives the four major causes over here. The causation theory, the efficient cause, the material cause, right? All these things he is discussing, that in actuality and potentiality, how from a seed it grows up into a tree. ठीक है, क्या उसका cause है? This is all we are going to discuss over here. Is it clear? Now the questions mostly come over here are of the types कि आप प्लेटो के idealism को एरिस्टोटल के रियलिज्म से कंपेयर करें. ठीक है? Now second part over here which starts is, it was around 17th to 19th century, and this is basically your modern Western philosophy. This is your Greek ancient philosophy. Now coming to this rationalistic philosophy, अब क्या हो गया था 17th century में? There was this enlightenment age. You have to catch that thing also in Europe which was going on. Mathematics was progressing. All these philosophers over here which we will be dealing, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, all these are mathematicians. All these, right? They start their premise on mathematics. Descartes, the first one over here is Descartes. उससे पहले ये समझते हैं what is rationalism and what is empiricism. रैशनलिस्टिक सेट ऑफ फिलोसफर्स वो होते हैं जो इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, यूनिवर्सलनेस पे बिलीव करते हैं, न्यूनेस पे बिलीव करते हैं, राइट? एम्पिरिसिस्ट वो होते हैं जो सेंस परसेप्शन पे बिलीव करते हैं. अगर मुझे दिख रहा है कि सामने बॉल पड़ी है तो आई विल एक्सेप्ट दैट. इफ आई डोंट सी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. दे बिलीव ऑन द फैक्ट्स, एविडेंसेस. इज इट क्लियर? व्हाट यू कैन परसीव. Now, Descartes was the first one over here, and he gives this concept of cogito ergo sum. And Descartes, he says that I think, therefore I exist. अभी मैंने आपको बताया था subject और object, ये लोग इसी में उलझे हुए हैं. तो ये जो पहले rationalist set of philosophers हैं, ये subject को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है? ये ऑब्जेक्ट को डिनाई कर देते हैं पूरी तरह से कि कोई सेंस एक्सपीरियंस नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, चेतना होती है, अल्टीमेट रियलिटी है. उस अल्टीमेट रियलिटी को जानने के ये तरीके बताते हैं. सो Descartes, he gives his Cartesian method. Descartes कहते हैं आप हर चीज को डाउट करिए, आपकी शुरुआत ही डाउट से होनी चाहिए. ठीक है? और आप मैथमेटिकली कोई भी एक बड़ा पजल है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए और छोटे से बड़े में अरेंज करिए. ओनली देन यू विल हैव
क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया. क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, व्हाट इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया, राइट? क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द डाउट. और इस पे डिकार्ड्स कहते हैं मेरा अस्तित्व ही एक क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है. इज इट क्लियर? आई थिंक देयरफॉर आई एम दिस थिंकिंग थिंग. बहुत बच्चे सोचते हैं थिंकिंग थिंग, चेयर में बैठे डिकार्ड ऐसे करके सोच रहे हैं. नो, दिस थिंकिंग थिंग इज द कॉन्शियसनेस व्हिच ही इज which he's saying. नहीं तो वो ये भी बोल सकता है ना, I walk, therefore I am existing. But walking is not a very conscious activity, always. But the जो चेतना होती है, that is the thinking thing which Descartes is trying to talk over here, cogito ergo sum, his method of doubt, and here the dualism of mind and body that keeps on going over here. ठीक है, किस तरह से ये कोशिश करेंगे इनको रिकंसाइल करने के लिए पीनियल ग्लैंड में, we are going to see up in the classes. Second one over here is Spinoza. Spinoza बहुत लोगों को पसंद आता है, ठीक है. He has given his concept of pantheism on the lines of Ramanujan. अब he believes in the infinite love of God. He says that जिस तरह से एक मॉथ घूम के एक मोमबत्ती के सामने आके अपने आप को खत्म कर देता है, उस तरह से दिस इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड is existing. He is talking about that, right? One thing, Spinoza starts his assumption on the axiomatic premises. अब स्पिनोजा क्या करते हैं, वो एक ज्योमेट्री में अपना पूरा सिस्टम बिठा देते हैं. तभी हम देखेंगे आगे चल के स्पिनोजा के सिस्टम में देयर इज अ इशू ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड फ्रीडम. स्पिनोजा, इफ एवरीथिंग इज एक्सियोमेटिक, then how there is freedom, how the humans are doing, how the problem of evil is existing, these questions are going to come. Okay, तो ये आपको इंटरलिंकेजेस करने हैं इधर पे और पेपर 2 के रिलीजियस फिलोसफी पे. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस comes Leibniz. अब Leibniz was a hardcore mathematician, ठीक है. वो बात करते हैं मोनाड्स की. He specifically mentions that there are infinite monads, ठीक है, and he tries to solve this problem of determinism and freedom in Spinoza by mentioning that there is compatibilism. Is it clear? अब जब आप डिकार्ट्स पढ़ेंगे तो आप एक खास चीज नोटिस करेंगे. डिकार्ट्स ऑल्दो एक तरह से इंट्यूशनवादी हैं, एक तरह से रैशनलिस्ट है, पर आप उसकी लिनिंग देखेंगे towards the empiricist also. ये भी एक सवाल पूछा जाता है. Not Descartes, Leibniz. Towards the empiricist also. ये एक सवाल और पूछा जाता है एग्जाम में. Is it clear? So these rationalistic set of philosophers, they are believing in intuition. They are denying the sense experiences. They are accepting the ultimate reality as the subject or the consciousness. ठीक है. Now, starting with empiricism. अब empiricism वो संदेहवादी philosophers हैं जो टोटली डिनाई कर देंगे कि भाई इंट्यूशन से आपको नॉलेज का ज्ञात नहीं होगा, राइट? एंड दे विल ट्राई टू गेन नॉलेज बाय द ऑब्जेक्ट. इसमें सबसे पहले जब लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि हम पैदा ही एक खाली दिमाग से होते हैं, जिसको बोलते हैं टेब्यूलर आसा. हम पैदा होते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम चीजों को परसीव करते हैं. पहले वाले क्या बोलते थे, हम एक इनेट इंट्यूटिव नॉलेज लेके आते हैं. ये क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ आके सब सीखते हैं. इज इट क्लियर? अब इसके बाद लोग बात करते हैं देयर आर सेट ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज, देयर आर सेट ऑफ सेकेंडरी क्वालिटीज, जो हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लोग की थ्योरी ऑफ नॉलेज, रिप्रेजेंटेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन आता है. अनदर वन ओवर हियर इज बर्कले. अब बर्कले पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि बर्कले, आप तो एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर हैं,
लेकिन आप किस तरह से गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं? Because God is not something you perceive, but you are an empiricist philosopher. You have given the theory of assiste percipi. Then how is it possible? ठीक है, तो बर्कले what he does, he says that सब कुछ जो एक्सटर्नल दुनिया में है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ दिमाग एग्जिस्ट करता है और दिमाग के आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, या माउंट एवरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है. I can't go and see the Mount Everest. You can't go and see the Mount Everest. Somebody X, Y, Z and infinite people can't see the existence of Mount Everest. But there is some superior mind which can see the existence of Mount Everest. And that superior mind, इसको उन्होंने ईश्वर की उपाधि दे दी है. तो इस तरह से बर्कले empiricist होके भी एक तरह से subjective आइडियलिस्ट हैं. इज इट क्लियर? इन डिटेल वी आर गोइंग टू डू दिस इन क्लास. यहां से भी बहुत क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. नाउ टॉकिंग ऑफ ह्यूम, अब क्या हो रहा था ह्यूम के आने तक? ही डिनाइड एवरीथिंग, ठीक है, ही डिनाइड everything except the material objects, and he even said that the theory of causation over here is a psychological phenomena. It is a mere conjunction, right? It is not cause and effect relationship. He denies everything. वो कहते हैं कि there is this river flowing. I cannot step in the same river twice. It is continuity and chain of event. It goes like beep, 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 beep. It keeps on changing. This is what Hume is saying. Hume is denying everything. There is no self. Hume ये भी बोलते हैं there is no self. ठीक है. Hume किस तरह से स्केप्टिक हैं, किस तरह से संदेहवादी हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. Is it clear? Now, the questions in these sections are mostly related to कांत ओवर हियर, या ये आपको रिलीजियस फिलोसफी से इंटरलिंकेजेस या फिलोसोफर को चेन में पूछ लेंगे. अब दिक्कत क्या होती है, जो रैशनलिस्टिक सेट ऑफ फिलोसफर्स है ना, दे लीड टू डॉगमैटिज्म, रूढ़िवादिता, और एम्पिरिसिस्टिक फिलोसफर्स जो हैं दे लीड टू स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद. तो अभी भी क्या वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी जो हम बात कर रहे थे, जहां से हमने प्रीमाइस शुरू किया था, क्या ये सॉल्व कर पा रहे हैं? नो. अब इसके बाद आएंगे आपके इम्यूनल कांत, जिनके बिना आपका कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं है. ठीक है, कांत वो ऐसी कड़ी है जो सबको जोड़ता है. अब जब कांत आएंगे तो कांत बोलेंगे कि dear rationalistic philosophers, something which you are saying is right, but another set of things which you are saying are not right. Similarly, he will say them to stop your dogmatism. Again, when the empiricist philosopher, again he is going to say the same thing, that you are saying some things right, but again I deny majority of your other facts, right? And you are spreading the skepticism. अब कांत क्या करेंगे, इनको यूनाइट करेंगे एक अलग तरीके से, और वो एसिंथेटिक यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन यहां पे बताएंगे. ठीक है, किस तरह से सिंथेटिक ए प्रायोर जजमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. यूपीएससी ने 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था. यू कैन गो एंड वॉच माय एंटायर वीडियो of half an hour. I have clearly discussed what are synthetic a priori judgments over there. When the subject is present in the predicate, right? A priori when there is tautology also. So कांत यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आपस में लेके आते हैं. कांत स्पेस एंड टाइम की बात करते हैं. ठीक है, कांत 12 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करते हैं. जब कांत स्पेस एंड टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे कांत एक तरह से जो न्यूटन ने अपना ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्पेस एंड टाइम के बारे में बताया उसको भी रिजेक्ट करते हैं.
एक तरह से जो लाइबनीज ने स्पेस एंड टाइम के बारे में बता रखा है दैट स्पेस एंड टाइम इज रिलेटिव, कांत उसको भी डिनाई करता है। उसके बेसिस में, उस प्रेमाइस में कांत अपने स्पेस एंड टाइम की थ्योरी देते हैं कि इंपीरिकल वर्ल्ड में जो हमें दिख रहा है, इस दुनिया में स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करता है, पर परे दुनिया, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में स्पेस एंड टाइम इज अ आइडियल कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? And this he specifically mentions in his Transcendental Aesthetic, that space and time are pure forms of intuition. Is it clear? Apart from this, हमारे मस्तिष्क की कुछ कोटियां होती हैं, categories of understanding. This he discusses over here, and then he gives us antinomies. Antinomies मतलब paradoxes which are not solvable either of the anyways. It is not solvable. कांत यहाँ पे पढ़ना इसलिए भी खास जरूरी है क्योंकि when it comes to the existence of God, कांत अज्ञेयवादी हैं. He is agnostic. ना तो वो एक्सेप्ट करते हैं ना तो वो डिनाई करते हैं. वो बस ये कहते हैं in order to make the room for faith, I'm going to keep the reason away. Is it clear? अब one of the most important philosopher over here, कांत अपना कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन देते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि माइंड पैसिव रिसिपिएंट नहीं है, माइंड एक्टिव पार्टिसिपेटर है. वो पूरा सोच जो चली आ रही थी उसको पलट देते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कांट्स कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन. इज इट क्लियर? नाउ अनदर थिंग, ऑल व्हाट आई एम डिस्कसिंग are those topics on the basis of which the questions are formed. हीगल. अब हीगल जब आप पढ़ेंगे, अब इसके बाद फिलॉसफी एक अलग मोड ले लेती है. ठीक है, जब आप हीगल पढ़ेंगे तो आप इसका डायलेक्टिकल मेथड पढ़ेंगे. दैट देयर इज अ थीसिस ए, देयर इज एंटीथीसिस माइनस ए, एंड देयर इज सिंथेसिस ऑफ ऑल दिस. Nationalism, Hegel and nationalism, 19th century. It starts from 17th century and goes up till 19th century, right? On this Hegelian theory, मार्क्स ने क्या किया था? इनके डायलेक्टिक्स को उल्टा घुमा दिया था. मार्क्सिज्म came, right? So this we are going to discuss over here, that rational is real and real is rational. This they have also asked the question in your mains essay paper. Is it clear? Now, ये आपका एक सेट ऑफ सेक्शन ए का पार्ट है. इसमें आप जरूर ये याद रखें, जो कांत का पोर्शन है उसको आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी ओवर हियर. अब कहानी कुछ ऐसे चलती है कि यहां से हम 20th सेंचुरी फिलोसफर्स की तरफ जा रहे हैं. अब सबसे पहले इसमें आते हैं मोर. मोर ब्रिटिश एनालिटिकल एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर हैं. ठीक है. अब समय ये आ रहा है 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, राइट? पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ. आप देख रहे हैं किस तरह से वेस्टर्न फिलोसफर्स अभी भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की डुअलिटी में ही फंसे हुए हैं. अभी भी उनको ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि वो एकता है क्या, वो यूनिटी है क्या, एक्सेप्ट फॉर कांत. जब वो इन दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं तो कांत यहाँ पे बहुत नियरेस्ट पहुंचते हैं एसिंथेटिक यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन. ठीक है, बहुत कोशिश के बाद वो वहां पहुंचते हैं. तो मोर बेसिकली बात करते हैं डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस. अब ये लोग 20वीं शताब्दी में आते आते इतना थक चुके होते हैं दैट दे आर लाइक, वी डोंट वांट कांट्स ट्रांसेंडेंटलिज्म, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रोमांटिसिज्म, लेट्स स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ. व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, मेरे दो हाथ हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये रियलिज्म है. मोर इसकी बात कर रहे हैं कि सब कुछ डिकार्ड्स की तरह ड्रीम में नहीं होता है. एवरीथिंग इज नॉट देयर. अगर मैं अभी खड़ी हूं और मुझे सपना आए, मैं खड़ी हूं और थोड़ी देर बाद मैं सो गई, ठीक है, और मुझे सपने में ये आ रहा है कि मैं खड़ी थी और मैं लेक्चर दे रही थी, तो वो भी एक तरह से सत्य है. उसको डिकार्ड्स कैसे खारिज कर सकते हैं?
मोर इसकी बात करते हैं. दिस इज अ पेन एंड आई एम सेइंग इट विद कन्विक्शन. जो मुझे दिख रहा है, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस विद कन्विक्शन. मोर आइडियलिज्म को रिफ्यूट करते हैं और यहाँ पे कॉमन सेंस की बात करते हैं इन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज. इज इट क्लियर? नो. आफ्टर मोर what happens? We are moving towards Russell. Bernard Russell, he was one of the greatest mathematician of that age. ठीक है, even Ramanujan, the mathematician of India, had been in collaboration with him. So he had given his concept of logical atomism. अब ये logical atomism is that there are sentences, okay, and in their sentences every word has a meaning. He went into the meaning of the words, and then later by Occam's razor, when we cut through the things, we come to the conclusion that what is the right solution over there. So we are going to discuss that what is logical atomism, what are logical constructions, what are the incomplete symbols over here. Is it clear? Now coming to early Wittgenstein. अच्छा, अर्ली विटगेनस्टीन और लेटर विटगेनस्टीन दोनों के नजरिए में बहुत फर्क है. अर्ली विटगेनस्टीन भी रसल की राह पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, तो वो भी बात यही करेंगे अबाउट द पिक्चर थ्योरी, दैट लैंग्वेज मिरर्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. वो यही बात करेंगे अबाउट सेइंग एंड शोइंग. ठीक है, व्हाट I am saying, what the language is saying, it's trying to represent that itself only. Logical form, it cannot be said, only shown. ठीक है, this is what Wittgenstein is trying to say over here. Now, apart from this, he also mentions that whereof one cannot speak, thereof one must be silent. यहाँ तक ये बात करते हैं. अब क्या होता है, इसके बाद विटगेनस्टीन चले जाते हैं अपने समर्स की छुट्टी पे. हम 20 साल बाद की स्टोरी देखेंगे विटगेनस्टीन की. बट इस दौरान, इसके बीच, क्योंकि अब फिलॉसफी पूरी तरह से लैंग्वेज बेस्ड हो चुकी है, जो बातें थी ना, जो अल्टीमेट रियलिटी, जो सत्ता को पकड़ने की ये बात कर रहे थे चेतना की, अब ये इसको लैंग्वेज के थ्रू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इस दौरान बीच में आपके आते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट. ठीक है, ये सारे के सारे इंपेरिसिस्टिक फिलोसोफर्स हैं. ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्या आप चेतना को प्रूफ कर सकते हैं, क्या आप सोल को प्रूफ कर सकते हैं. किसी ने गॉड देखा है, इसको एग्जैक्टली प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस कर सकते हैं, विजुअल एविडेंसेस. somebody can with conformity say yes, I have seen God. It is a experience, right? तो यहाँ पे ये अपनी वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग देते हैं. ये बात करते हैं कि स्टेटमेंट, कोई भी अगर स्टेटमेंट है लैंग्वेज का, वो सिर्फ तब मीनिंगफुल है या तो वो इंपिरिकली वेरीफाइबल है या वो एनालिटिकली ट्रू है. ये पूरी तरह से मेटाफिजिक्स को खारिज करते हैं, कहते हैं ये नॉनसेंसिकल है. दिस इज नॉट मेकिंग सेंस इन द सेंटेंस ऑल्सो. ठीक है, एंड देन दे से दैट द मैथमेटिकल प्रपोजिशंस आर टोटोलॉजी, मतलब अ सर्कुलर फैलेसी. दे आर ट्रू बाय देयर डेफिनेशन. इसके बाद इसमें आपको जो पढ़ना है वो है अयर. अयर बेसिकली डिस्कसेस अबाउट the language, truth and logic over here. कुछ वेरिफिकेशन थ्योरी है, कुछ चीजें आपको मैच करनी है, ये empirically verifiable है, and all these things we are going to see in the class. ठीक है, इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है, बहुत मजा आएगा नहीं. I'll give you one paper notes, आपको उनको एक टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ लेना है. कंडीशंस, इट्स लॉजिक ओनली, ये है तो ये है, ये है तो ये है, सब कुछ को ये डिनाई ही कर देते हैं इस तरह से. अब खास यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपके, जो खास आते हैं लेटर विटगेनस्टीन. अब ये वापस आ जाते हैं. अब ये जो भी बोलते हैं कि मेरे गुरु ने, रसल ने जो भी बताया था, ही इज नॉट इन फेवर ऑफ दैट. एंड देन ही गिव्स हिज मीनिंग एंड यूज, देन ही गिव्स हिज लैंग्वेज गेम,
देन ही क्रिटिसाइजेस द प्राइवेट लैंग्वेज। ये बात करते हैं कि कोई कोई पिक्चर थ्योरी नहीं है टोटली यहाँ पे, ठीक है। शब्दों के मायने उसके यूज में हैं, उसके अंदर के अंदर मीनिंग मत देखो, उसके यूज में देखो, हाउ इट इज यूज्ड। जिस तरह से एक टूल बॉक्स में बहुत सारा सामान रखा रहता है और उसको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के सामान पे, उसी तरह से हमें लैंग्वेज के साथ भी लैंग्वेज गेम्स खेलने चाहिए। जब हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, जहां पे हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है, उसकी वहीं तक यूज एंड मीनिंग को देखो। दिस इज व्हाट he is trying to say, and this is the argument he gives in terms of private language, critique of the private language। ये बोलता है कि अगर हर किसी की अपनी अपनी भाषा हो जाएगी, अगर एस एक तरह से मेरा प्राइवेट सेंसेशन है और सबके लिए एस के मायने ही अलग अलग हो जाएंगे, तो हम एक कॉमन ग्राउंड पे आ ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से, इसीलिए ये इस चीज को कंप्लीटली डिनाई करते हैं। डिफरेंशिएशन बिटवीन अर्ली विटगेन्स्टीन एंड लेटर विटगेन्स्टीन इज completely asked, and we see a mystical sense over here in the later Wittgenstein. Is it clear? Now, coming to the phenomenology of Husserl, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आफ्टर कांत। इसमें बात करते हैं, इनके एक ब्रैकेटिंग की मेथड होती है जिसको बोलते हैं इपोक, ठीक है। ये एक ऐसे फिलोसफर हैं जो काफी हद तक सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसको बोलते हैं इंटेंशनैलिटी, टू कैच इट इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द एक्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, एपोक, ब्रैकेटिंग, ये अपने एजम्पशंस को पूरी तरह से सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, और प्योर कॉन्शियसनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। And then he gives us eidetic reductionism and psychologism. This we are going to see in the class. Is it clear? एक तरह से कह सकते हैं वेदांत की कुछ फिलोसफी से ये प्रभावित थे। Now, existentialism. Again, every year UPSC is asking question from you. ये आपके essay में भी बहुत काम आएगा। इसमें 3 philosophers हैं, किरकेगार्ड, सात्र and हेडेगर। किरकेगार्ड आपके इसमें रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर हैं। वो बात करते हैं ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी की ओवर हियर, ठीक है। वो बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, दैट इज प्रायर बिफोर द एसेंस ऑफ गॉड और सोल ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां से वो पूरी तरह से फिलोसफी एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन हो जाती है। वो कहते हैं भाई इंसान को पहले रखो, यहाँ पे ये बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और किरकेगार्ड कहते हैं कि इंसान के ना 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है एस्थेटिक स्टेज, ठीक है, जब वो खेल रहा है, कूद रहा है, क्लबिंग जा रहा है, फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, लाइफ में कुछ मिसिंग है, लेट्स ट्राई टू बी लिटिल मॉरल। देन ही गोज टू दिस एथिकल स्टेज, एंड देन अल्टीमेटली ही राइजेस टू अ रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्टेज। इज इट क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट सात्र, when you are talking about the concept of God, सात्र इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। He does not believe in the concept of God. ये फैक्टिटी का नाम देते हैं। ये कहते हैं कि you choose every time. There are scenarios, but factity is you can't choose your parents, you can't choose your brothers and sisters, but otherwise you are responsible for the choices you make. You create the value in your life. You are responsible for the bad choices in your life. So he tells about considering about human existence and taking the responsibility as a human being. Heidegger बात करते हैं कि there's a Dasein is being into the world, right? And he is talking about what is this authentic existence of a human being and what is this inauthentic existence. This, all of the 3 philosophers are emphasizing on human dignity, on the concept of human existence. आप समय देखिए ना, 20वीं शताब्दी से आप 21वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं। There is revolution in a lot of things that is going on around the world, ठीक है।
यस, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेडिकल फ्रीडम, द टेम्पोरलिटी इन द वर्ल्ड. इसको हम क्लास में देखेंगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मार्केट में इस पूरे सेक्शन में कोई भी बुक स्पेसिफिक नहीं है. मैंने पहले ही बताया है, बीए एमए के या तो आप नोट्स लें या आप इग्नू की साइट्स या स्टैनफोर्ड की साइट से आप नोट्स बना लें ऑन द टॉपिक्स. ठीक है. अब क्वेन एंड स्ट्रॉसन, ये थोड़ा सा हार्ड है समझने के लिए कॉन्सेप्ट, पर 2 पन्ने का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. क्वेन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि कोई भी एनालिटिक और सिंथेटिक डिस्टिंक्शन होता नहीं है चीजों में. वो कहते हैं कोई रिडक्शनिज्म भी नहीं होता है, और ये ऑन्टोलॉजिकली बहुत ही रिलेटिव है. ठीक है. ये यहाँ पे बेसिकली यू कैन से Quine is talking about the rejection of the empiricism over here. ठीक है. This we are going to see. In terms of Strawson, he is giving the concept of basic particulars and person. There is M particular, there is P particular. सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं. यहाँ पे उन्होंने दे रखा है M predicate and P predicate. ठीक है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है. We are going to see that in the class. So paper 1 syllabus, is it clear? इसमें आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है? कांत, Husserl. One question at least has to be from the Western contemporary philosophy, and other one you can choose from the above. ठीक है. अब आते हैं पेपर 1 के इंडियन फिलोसफी में. तो अभी तक हमने वेस्टर्न फिलोसफी में कितने फिलोसफर्स देख लिए? टोटल 25 फिलोसफर्स हैं. हर फिलोसफर को आप 3 पन्ने के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 2 डिटेल नोट्स और एक आपने ग्राफिकल फॉर्मेट में बना दिया. अब इसके 10 बार रिवीजन करिए, कैसे मार्क्स नहीं आएगा? इंटरलिंकेजेस ऑफ द फिलोसफर करिए. कोई करंट अफेयर्स नहीं है, कोई अपनी बुद्धि नहीं है. व्हाट दे आर सेइंग, ओनली दैट यू हैव टू से और रिफ्यूट. इज इट क्लियर? अब कमिंग टू इंडियन फिलोसफर्स, अब ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जो इंडियन फिलोसफर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल एप्रीहेंशन कर ही नहीं रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू नाउ नो दैट हाउ कैन वी नो दिस अल्टीमेट रियलिटी. ये सत्ता है, इस सत्ता का ज्ञात कैसे होता है, इसका बोध कैसे होता है? ये सीधे इधर पे आते हैं. ठीक है. इसमें भी एक ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स सेट ऑफ फिलोसफर्स हैं. हेटेरोडॉक्स वो होते हैं जिसको नास्तिक बोलते हैं. ठीक है. हु डिनाय द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. जैसे जब हम चारवाक देखेंगे, चारवाक सारी चीजों को खारिज करते हैं, ये सिर्फ परसेप्शन को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. देयर आर 6 ways in which you can gain knowledge in Indian philosophy, theory of knowledge. ठीक है. Indian philosophy is mostly about the epistemology. ठीक है. तो चारवाक यहाँ पे बात करते हैं कि हमें जो भी नॉलेज का एक्सपीरियंस होगा वो सिर्फ हमें सेंस परसेप्शन से होगा. He denies soul, he denies metaphysics, he denies the concept of God, and he specifically mentions you borrow the butter and you drink the butter. ठीक है. Now, coming to Jainism. Jainism give their 2 major theories over here, Saptabhangi Nyaya and Anikant. Relative pluralistic theory over here. Now, Jainism is also a Gnostic school of philosophy. It denies the authority of the Vedas, but it has given its 7-fold prediction. Asti cha, nasti cha. Matlab, they are not asti cha, nasti cha. Saptabhangi, in the Saptabhangi Nyaya, they are trying to say affirmation, negation. Yes, that's also true in another sense. Affirmation, negation. Neither affirmation, neither negation. They are trying to give the judgments कि अगर वहां पे जार रखा है, ये पेन एग्जिस्ट कर रही है, तो रिलेटिवली इसके 7 जजमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. अनेकांतवाद में जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि रियलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं. एक हाथी है. अब ये हाथी के आसपास 6 अंधे आदमी खड़े हैं. कोई उसकी सूंड टच कर रहा है. ठीक है. कोई उसकी पूंछ टच कर रहा है, कोई उसके ट्रंक टच कर रहा है, कोई उसके ईयर्स टच कर रहा है. तो इसको जानने के लिए he specifically mentions that there is not only one way.
it is relative. This is what it is trying to say. ठीक है, they accept the concept of God but keep that below the Jinnah. So these two theories we are going to discuss today. अब बुद्धिज्म सबसे खास कड़ी है पूरे इंडियन फिलोसफी में. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस. ठीक है, बुद्धिज्म में वो अपने 4 मेजर सॉरोस जो देते हैं, सेकंड सॉरो के बेसिस में वो प्रत्युत समुत्पाद की थ्योरी लाते हैं, विच इज थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट कॉजल रिलेशन, जहां पे वो 12 लिंक्स को, कड़ियों को जोड़ देते हैं एक सर्कुलर फॉर्मेट में. अगर मैं पैदा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं मरूंगा भी, तो नाम रूप होगा, स्कंदाज होंगे, वो सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं. ठीक है, नाउ दिस प्रत्युत समुत्पाद इज theory of dependent origination. This means that there is a causal relationship. Is it clear? But this is also existing only in the empirical world. औपाधिक जगत में ये एग्जिस्ट करता है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में दिस इज आइडियल. ठीक है, इसको समझेंगे. इसके बाद क्षणिकवाद. क्षणिकवाद आपके हेनियान स्कूल ऑफ फिलोसफर्स ने ही एक्सेप्ट किया है, महासंगिका महायान्स ने इसको डिनाई किया है. दिस थ्योरी ऑफ मोमेंटेरिनेस, हाउ इट्स लॉजिकल इम्प्लीकेशन, इट लीड्स टू निरात्मयवाद. जिस तरह से एक पहिया होता है, उसके बहुत सारे स्पोक्स होते हैं और वो एक क्लस्टर में चल रहा होता है, उसी तरह से निरात्मयवाद में देयर इज नो सोल थ्योरी. वी ऑल ह्यूमंस आर accumulation ऑफ द स्कंधास, द नाम रूपास, द पंच स्कंधास. ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. इसके अलावा सिलेबस में तो मेंशन ये 3 है, लेकिन बुद्धिज्म में वो सवाल काफी पूछता है. शून्यवाद खासकर अभी तक 2008 में शायद सवाल पूछा था. फॉर दिस ईयर शून्यवाद कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट what is shunyavad described by Nagarjuna? Shunya does not means that it is void, right? It means that it is devoid of the pluralities. परपंच से दूर है वो. ठीक है, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में. पूरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसमें. नाउ कमिंग टू न्याय वैशेषिक. अब न्याय इसमें आपकी एपिस्टेमोलॉजी स्कूल है और वैशेषिक आपकी मेटाफिजिक्स स्कूल है. न्याय बताएगा किस तरह से हम जान पाएंगे कि नॉलेज सही है या गलत है, राइट? और वैशेषिक आपका यहाँ पे बताएगा एटॉमिस्टिक थ्योरी, अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉजेशन. ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. नाउ ओनली इन होल इंडियन फिलोसफी सिर्फ न्याय का एक ऐसा स्कूल है जिसने स्पेसिफिकली 10 आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मेंशन कर रखे हैं. ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप रिलीजियस फिलोसफी पढ़ेंगे, जैसे अदरस्त, वहां पे आप ये सब चीजें लिखेंगे. ठीक है, रिश्ते, ये सब आ जाएंगी चीजें उस समय. नाउ वैशेषिक आपका एक एटोमिस्टिक स्कूल है. ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स ही आपकी यहाँ से डेवलप होती है. देयर इज द्रव्य, किस तरह से सारे सब्सटेंसेस मिलके they create this world. That we are going to study over here, atomistic theory of creation. कैसे creation form होता है. Now talking about Sankhya, in Sankhya there is प्रकृति and there is पुरुष. जब इन दोनों का आपस में what do you say, when there is a dance between purush and prakriti, then there is a creation. Then there is destruction in the world and there is disturbance of the 3 gunas, satogun, tamogun, rajogun, and then there starts the process of whole creation. This we are going to discuss over here. Is it clear? इसमें question specifically ये आता है क्या, what are the 5 ways in which the creation happens. वो कुछ आपके संस्कृत के टर्म्स हैं जो आपको मेंशन करके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. और ये जो क्रिएशन की थ्योरी है, इसको बोलते हैं सत्करवाद. दैट द इफेक्ट्स इट प्री एग्जिस्ट्स इन द कॉज, राइट? अगर दही बन रही है तो दूध में, राइट, दही इज द इफेक्ट, तो दूध में ऑलरेडी कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से दही बन रही है. इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, सत्करवाद थ्योरी. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. योग, योग इज वेरी सिंपल.
एक पन्ने का टॉपिक है, आपको बस 8 मेथड्स ऑफ योग क्या होते हैं वो सीरीज में आपको देखने हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या क्लेश है और क्या किस तरह से समाधि ले लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मीमांसा, मीमांसा में आपको थ्योरी ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा पढ़नी है, आपको इसमें ख्यातिवाद देखना है, ठीक है, when you will be comparing all the other philosophies with this. Apart from this, in Mimamsa, it is one of the school which accepts all the 6 theories of knowledge. किस तरह से ये अनुपलब्धि को भी एक्सेप्ट करते हैं, अर्थपति को भी एक्सेप्ट करते हैं, ये हम 6 तरीके की चीजें इसमें सीखेंगे। अनुपलब्धि इज नॉन एप्रीहेंशन, ठीक है, अर्थपति इज पॉस्टुलेशन, जैसे पॉस्टुलेशन में मैं बोलूं देवदत्त मोटा है, देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है, पर देवदत्त रात को जरूर खाना खाता होगा। नाउ दिस इज अ पॉस्टुलेशन, बाय दिस आल्सो वी आर गेनिंग नॉलेज, राइट, सो दैट इज पॉस्टुलेशन, ठीक है। नॉन एप्रीहेंशन अनुपलब्धि, इस चेयर का यहां पे ना होना, इससे भी हमें एक नॉलेज ज्ञात होता है, उसको हम अनुपलब्धि बोलते हैं। इज इट क्लियर? दिस 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। वेदांत, अगेन आफ्टर बुद्धिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका स्टार्ट होता है ये शंकराचार्य, रामानुज एंड माधवाचार्य, 3 टाइप के आपको वेदांतिक फिलॉसफीज इसमें पढ़नी है। शंकराचार्य की कोर अद्वैत फिलॉसफी है, जहां वो बात करते हैं तत्वम असि, ठीक है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। वो कहते हैं कि माया के एक इल्यूजन आ गया है जिसकी वजह से हमें रियलिटी नहीं दिख पा रही है। वो त्रिकाल सत्यवाद की बात करते हैं कि 3 स्ट्रीम्स में रियलिटी चलती है, एक इल्यूजनरी, एक इंपेरिकल इस वर्ल्ड की, एक पारमार्थिक जगत की, ठीक है। दिस वी आर गोइंग टू सी इन द क्लास। और किस तरह से फिर वो बोलते हैं कि ये जो माया की वजह से अध्यस्य आ गया है, ये कैसे हटाया जाए और कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए, क्योंकि ये बात करते हैं ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। जब रामानुजन आते हैं तो रामानुजन यहाँ पे बात करते हैं कि जो ब्रह्म है, जो सत्य है, दैट इज नॉट इक्वल टू अस, ठीक है, वी आर मियरली द फाइनाइट मोड्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट इनफाइनाइट। दिस इज व्हाट रामानुजन ट्राइज टू से। It is like Spinoza's pantheism. Is it clear? When Madhvacharya comes, he says that Brahm and Jagat, these are entirely different. Is it clear? अब किस तरह से रामानुजन शंकराचार्य की थ्योरी को खारिज करते हैं, we are going to see those criticism. किस तरह से माधवाचार्य रामानुजन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। क्वेश्चंस इस पे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। इज इट क्लियर? नाउ Aurobindo over here, again very simple, this is mentioned in your syllabus, you can say contemporary Indian philosopher. Again this will not be present in C.D. Sharma. There is I think आप BA की कोई भी किताब ले लें उसमें आपको मिल जाएगा. He gives the concept of इंटीग्रल योग, किस तरह से इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन होगा, दैट इज द सैल्वेशन ऑफ ऑल द सोल्स, दे हैव टू बी टुगेदर. इट इज नॉट अबाउट द सैल्वेशन ऑफ वन पर्सन, रादर द सैल्वेशन ऑफ ऑल द पीपल collectively. I hope the paper 1 is clear to you. Very quickly we are going to discuss about the paper 2. फिलोसफी पेपर 2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला आपका सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है. इसमें आपको एज मिलता है कि आप करंट अफेयर्स का इंक्लूजन कर सकें, ठीक है. यू गेट अ लिटिल एडवांटेज दैट यू कैन पुट योर व्यूज ओवर हियर. लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट इज द सिलेबस. द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज सोशियो पॉलिटिकल आइडियल्स. ये आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और एथिक्स में ओवरलैप होते हैं, ठीक है. हियर वी डील विद द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, व्हाट द फिलोसोफर्स हैव बीन सेइंग. जैसे अगर मैं बात करूं इक्वालिटी, क्या एक रेस पे एक जगह से सबका दौड़ना सही है? इक्वालिटी किस चीज की? क्या इक्वालिटी फॉर्मेटिव हो, क्या वो सब्सटैंटिव हो? राइट, इंडिया में हम सब्सटैंटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी देते हैं आर्टिकल 14 में. नाउ
सेकेंड कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज रिगार्डिंग द जस्टिस. इसमें हम जॉन रॉल्स के डिफरेंशियल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, किस तरह से उन्होंने सोशल जस्टिस की थ्योरी दी थी. विल स्टार्ट फ्रॉम एरिस्टोटल, राइट, एंड विल गो टिल जॉन रॉल्स, and then further we'll see how Amartya Sen he mentions over here about the capabilities approach. जैसे कि अगर कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, तब वो भूखा है, और कोई सीरिया में या काला हांडी में है और वो इसलिए भूखा है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है. इट इज मोर अबाउट the choices of freedom in the capabilities approach which we are going to discuss over here. ठीक है. लिबर्टी, कितनी लिबर्टी होनी चाहिए सिटीजन्स को. व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ इंटरफेरेंस दैट स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है. यहाँ पे हम खास चीज जो पढ़ेंगे नेगेटिव लिबर्टी को फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, जैसे बर्लिन है, नोजेक हैं, हायक हैं, ऑल दीज आर सपोर्टिव. आपको ये लेमैन आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको इसको फिलोसोफर्स से सपोर्ट करके क्रिटिसाइज करना है. Second part of the syllabus over here is sovereignty. What is this concept of sovereignty? When there is legal authority involved, and sovereignty, the state in itself is a supreme entity. States के 4 हिस्से होते हैं, right? अभी हम इसमें ये देखेंगे किस तरह से concept of sovereignty it changed from the monarchical form of government. पहले monarchy थी, monarchical sovereignty थी कि all the powers were with the king or the monarch, and how that concept changed, that the powers went to the people, how it transitioned into a democratic government. We are going to see here, and we are going to study about Austin, right? His command theory, the divine command theory, that the king has all the authority and he is supreme and he is the all moral authority. Then Bodin, where he discusses about the supreme state power. ठीक है, यहाँ पे liberty मिल जाती है, and here the evolution of the concept of people starts. Lasky, how he criticizes the pluralistic theory. This also we are going to discuss over here, and we'll sum it up with Kautilya's Saptang theory of the state. Now third part over here is the individual and the state, that not only the state provides the right to the people, but the individual has certain set of duties to be performed by the state. There are generation of rights over here, right? किस तरह से first generation, second generation and third generation rights का evolution हुआ है. Now, apart from this, okay, this one is important for your exam very much, and this one is again important, political ideologies. Anarchism, क्या होता है anarchism? अराजकता. महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था anarchism को, और उन्होंने बोला था concept of राम राज्य आना चाहिए, right? That is anti-state. Now, second thing over here is Marxism. Marxism talks about the class struggle, the struggle of the proletariat and the bourgeois class, how he reverses the dialectical method of Hegel. Now, the third thing over here is socialism. India में क्या है? Fabian socialism है. How the concept of welfare and ownership is percolated into the society. This we are going to see over here. Now, the fifth part of your syllabus over here is what are the various forms of government, जैसे monarchy, ठीक है, उसके बाद theocracy, and then is the democracy. Now we are going to also see the critiques of democracy, also what various philosophers had said, especially Plato and Aristotle. They were not in support of democracy, क्योंकि वो बोलते थे कि 95% of the जनता तो illiterate है, right? They were not in favor of this. Sixth topic over here is humanism. Now in humanism, the human becomes the central tenet of everything. Everything revolves around the human. पहले metaphysicians क्या बात कर रहे थे? That it is the existence of the essence. They were talking about the essence of things. Now they are talking about that human is existing here. Talk about human dignity and human rights. Second topic over here is secularism. What is secularism? Secularism is this worldliness. Secularism is not entire state or entire religious, ठीक है? It takes a principal distance in Indian secularism, which is based on the concept of Sarva Dharma Sambhava. Here we are going to see how Western form of secularism is completely different from the Indian form of secularism, ठीक है? Multiculturalism.
What happened after 1970? The people of various places, they came together and started living together, and they developed this whole new concept of multiculturalism, which is also known as the mosaic bowl, where every community was coming together and it becomes, जैसे मोजेक बॉल होता है, बहुत सारे सैलेड्स अलग अलग एक साथ होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग आके एक साथ एक नई आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं. इसके भी हम कुछ क्रिटिसिजम्स देखेंगे, जैसे घेटोइज्म एंड ऑल, वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास. नाउ crime and punishment and violence. Here we are going to see various theory of crimes and punishment, जैसे deterrent theory, reformistic theory, retributive theory, what deontologists are saying, what utilitarianists are saying, that we are going to discuss over here. Apart from this, what is this moral depravity, corruption, that is in your syllabus. Okay, what is genocide, what happened in Rwanda, all these violence case we will be discussing over here. Now, eighth topic which is important over here is development and social progress. ठीक है, किस तरह से economic development is differentiated from the human development. This is very simple. You will quote it in your essays also. Now these last two topics over here, the ninth one is about the gender discrimination. किस तरह से feministic concept आया, किस तरह से waves of feminism आए, किस तरह से फीमेल फोर्टिसाइड है, डाउरी है, all these things we are going to discuss over here. The root causes, right, and the root of feministic philosophy we will be seeing, and we will be seeing that how empowerment and justice is provided to them. Apart from this, the last topic over here is caste discrimination. How Mahatma Gandhi's view or ideology had been different from Ambedkar. जैसे अंबेडकर ने बोला था annihilation of the caste, interdining and intermarriages. महात्मा गांधी ने क्या बोला था? interdining is okay but intermarriages should not happen. ये हम देखेंगे एक टेबुलर फॉर्मेट में. Now in all this socio-political philosophy, मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ आप सेक्शन बी में एक क्वेश्चन इधर से अटेम्प्ट करें. मेनी स्टूडेंट्स ट्राई टू अटेम्प्ट टू टॉपिक्स फ्रॉम हियर, बट थोड़ा सा क्या है इसमें वेगनेस है, राइट? You have this open end innovation thing and you will never know when you are diverging from philosophy and you start putting the general studies answer. आप अपना बहुत ज्यादा लिख देंगे. तो आप एक क्वेश्चन सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी से कंपल्सरी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करें और दो क्वेश्चन आप फिलोसफी ऑफ रिलीजन से करें. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिलीजन? रिलीजन का मतलब होता है to religare. That means a community is coming together and binding itself with certain moral commandments. ठीक है, वहां से कॉन्सेप्ट आया है. कंफ्यूज नहीं करें, that philosophy of religion is very much different from theology. ठीक है, हम यहाँ पे religious studies नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि religious experiences, religious language, ठीक है, the reason, revelation, faith, problem of evil, what is it and what is this whole problem with the theistic philosophers. पहला टॉपिक जो आपके यहाँ पे कोर्स में है वो है notions of God. It is theism, it is deism, it is pantheism और it is panentheism. हम ये देखेंगे कि हर फिलोसफर अपनी अलग अलग यहाँ पे थ्योरी देता है. And the attributes of God. God is omniscient, God is all present, God is all loving, God is all pervading. What are these characteristic features of God? This we are going to discuss over here. Indian philosophy में निर्गुण और सगुण ब्रह्म we are going to discuss. Second part over here is about the proof for God and their existence. अब proof में सबसे पहले आपका आता है सेंट एंसलम के द्वारा दिया गया हुआ ontological argument. ठीक है, इसमें डिकार्ट्स इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, इसको ए प्रेराय आर्गुमेंट बोलते हैं. This we will be discussing in the class. Then cosmological argument, teleological argument, what is the end purpose, right? Then moral argument towards it. उसके बाद आप देखेंगे इंडियन फिलोसफी में न्याय वैशेषिक ही एक ऐसे हैं जिन्होंने 10 proofs for the existence of God mention कर रखे हैं. ठीक है. Apart from this, we are going to see that how Kant is criticizing critique of pure reason. He is criticizing this idea of God. But there again Kant says that I will give room for faith and let the reason go away. ठीक है. Now
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है प्रॉब्लम ऑफ इविल, और ये सवाल उठता ही थीस्टिक फिलोसफर्स के साथ है कि जब आपके भगवान इतने सर्वोपरि हैं, ऑल प्रिय, ऑल गुड एंड एवरीथिंग, तो दुनिया में इविल एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? व्हाई देयर इज सफरिंग? अब ये समस्या एथीस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि एथीस्ट तो पहला प्रेमाइस ही नहीं मान रहा है। ये समस्या किसके लिए एग्जिस्ट करती है? जो भगवान की मान्यता रखते हैं, उनको अब ये समझाना पड़ेगा कि ये दुनिया में इतनी सफरिंग है क्यों, एंड दे विल बी एक्सप्लेनिंग दिस with free defense argument, right? They will be explaining this with various evidential problems, and this we will be discussing in the class. This is known as theodicy. Now, fourth topic over here is soul, immortality and liberation. यही तो सारे philosophers वेस्टर्न और इंडियन जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये चेतना है क्या, इस माइंड में, इस बॉडी में, what is this which is existing beyond, right? So what is this concept of soul? कुछ मानते हैं सोल को, कुछ सोल को नहीं मानते हैं, जैसे बुद्धिज्म, no soul theory does not accept this concept of soul existing. Hume, he also does not accept this, right? Now what is this concept of liberation? Liberation हम सबसे ज्यादा जो देखते हैं वो आपको मिलता है इंडियन फिलोसफी में, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस मोक्ष, ठीक है? डज immortality exist? Is there transmigration of soul? All such questions we are going to deal over here. It is very interesting. Now the fifth topic over here, again for those who believe in God, they have to prove it via reason, via revelation of the scriptures, or via faith, right? It is a question about natural theology. Sixth topic, again this is important over here, कि अब जितने भी ये religious people हैं who are believing in this concept of God, what kind of experiences they are going through. इसमें विलियम जेम्स बहुत में से एक क्वालिटी बताते हैं जिसको बोलते हैं नोएटिक, ठीक है? So this we are going to discuss. Apart from this, Upanishads, they are giving the direct knowledge, ठीक है? कहाँ से हमें पता चल रहा है religious experiences के बारे में? Apart from this, another topic which is important over here is religion without God. Religion without God. अब बुद्धिज्म है, there is no concept of God, right? Jainism है, he has accepted the concept of God, but he has kept it below Jina, not like other philosophies. So how is the religion existing, right? Because I've already told, a religion does not mean God, or it is not theology you are researching that. It means religare, community coming together and binding, right? What are those set of religious philosophy which do not believe in the existence of God? We will discuss that. अब सवाल ये उठता है, क्या religion morality पे डिपेंड है, या morality religion पे डिपेंड है, या दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं? This is also we are going to see, because Kant has not accepted religion, but yet he keeps morality at the top. He says that Immanuel Kant says that two things fill my mind with awe and wonder. One is starry heavens above, and one is the moral law within. Okay, this we are going to see. Now this is again important thing over here, a religious language. अब जिन लोगों को ये religious experiences होते हैं, वो किस तरह symbolic भाषा में या एनालॉजिकल भाषा में किस तरह से अपनी बात को कहते हैं, ठीक है? क्या वो भाषा है रिलीजन की? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. एनालॉजिकल, सिंबॉलिक, Paul Tillot's argument we are going to see over here. What is cognitive, what is non-cognitivism, we are going to see that also. Last topic over here is that religious pluralism. There are multiple religions, but the reality is one, right? Now you have to give arguments in support of this. So these are your 10 major topics in फिलोसफी ऑफ रिलीजन. 10 आपके सोशियो पॉलिटिकल में है, 10 आपके रिलीजन में है. तो पूरे सिलेबस में कितने हो गए? 25 आपके वेस्टर्न फिलोसफर एंड कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स हो गए. 9 स्कूल या 10 टॉपिक आपके किस में आ जाते हैं? इट कम्स इन योर इंडियन फिलोसफी. 10 over here and 10 over here. So 45 topics you have to prepare. Can't you prepare each of the topic in 4 pages? And you are done through. और उसी notes के आपने इतने multiple revisions कर दिए हैं that whatever question they are asking, you are able to represent. Philosophy की खास बात यही है कि इसका syllabus बहुत छोटा है,
ठीक है, सबसे इसका अगर किसी बच्चे ने क्रक्स समझ लिया, अगर उसने समझ लिया ये पूरी बात ही डुअलिटी से लेके यूनिटी की तरफ चल रही है, तो आपको ये एब्स्ट्रैक्टनेस समझने में इजी होगी कि फिलोसफर कहना क्या चाह रहा है। अब माइंड क्या है, बॉडी क्या है, सोल क्या है, यू विल बी कंफ्यूज्ड विद ऑल दीज थिंग्स, राइट। स्कोरिंग पोटेंशियल फिलोसफी का बहुत ज्यादा है। एक बार डेप्थ समझनी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, definitely you can represent in the answers. I am there, you can send me on my telegram channel, you can simply pick up a past year question, right? And you can just write your name, your past year question, your phone number, and send me the answer. I will be personally evaluating all these copies and I'll be replying you back on this. Okay. नाउ एक और खास बात फिलॉसफी की ये है कि हर दूसरे तीसरे साल, अगर इस बार कांत का स्पेस एंड टाइम पूछा है, अगले साल वो 12 कैटेगरीज पूछ लेगा, तीसरी बार वो एंटीनोमीज पूछ लेगा, फिर वो जाएगा स्पेस टाइम में, ठीक है, फिर वो ए प्रियोराइज सिंथेटिक जजमेंट्स पूछ लेगा। तो वो क्या कर रहा है, चीजों को सिर्फ रिपीट ही कर रहा है, पर आपकी कॉन्सेप्चुअल होल्ड अगेन इस पेपर में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।